everyone. Guys, I am Nidhi Dhruv. I am a law graduate and a company secretary, having 8+ years experience in teaching for various law entrance exams. I was earlier associated with IMS Learning Resources. I am still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you all and sharing my knowledge. So that's me, guys. Today we are doing one very important topic, that is defamation. This entire video you will get complete idea, complete concept learning of defamation, especially defamation of torts. Okay, defamation as a tort. So let me first begin with this thing, that defamation is both. It's both a crime, okay? It's both tort and a crime, okay? So एक criminal wrong भी है defamation and tort भी है. So first to understand what exactly defamation is. Defamation होता क्या है? So defame करना किसी को. What does it mean? To defame someone. That is to injure reputation of someone. Reputation बोलो या goodwill बोलो. So that is defamation. किसी की बदनामी करना, to injure reputation, उनकी goodwill को खराब करना, and वो लोगों की नजरों में खराब दिखे, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए, वैसा कोई भी स्टेटमेंट करना, इसे हम डेफेमेशन बोलेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. हम लोग आए दिन देखते हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है. तो दैट माय फ्रेंड्स इज नथिंग बट डेफेमेशन. मैं जैसे बता रही हूँ कि डेफेमेशन दोनों है, टॉर्ट एंड क्राइम दोनों है. ओके, मतलब क्रिमिनल रॉन्ग में आईपीसी में उसे एज अ क्राइम भी बताया गया है, एंड सिविल रॉन्ग में, सिविल लॉ में उसे टॉर्ट के जैसे भी दिखाया गया है. ठीक है. सो व्हेनेवर इट इज लेस सीरियस इन नेचर, इट इज लेस सीरियस इन नेचर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है डेफेमेशन. अगर मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इट्स अ tort, मतलब defamation is a tort, right? If it's less serious one. If it's a very big thing, it is a more serious kind of wrong, then defamation will be treated as a crime. So it is both. ये ध्यान में रख लीजिए. Now I've made you understand that what exactly defamation is. It's injuring someone's reputation or goodwill को खराब करना, right? तो लेट्स अंडरस्टैंड डेफेमेशन को कोर्ट कैसे देखेगा. ओके, व्हेनेवर एनी सिविल सूट ऑफ डेफेमेशन इज फाइल्ड, कोर्ट विल लुक इनटू दीज 3 एस्पेक्ट्स. ओके, कोर्ट ये 3 एस्पेक्ट्स को देखेगा व्हाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ डेफेमेशन और व्हाइल जजिंग द केस ऑफ डेफेमेशन. फर्स्ट थिंग जज विल सी इज whether the statement is defamatory or not. The statement must be defamatory. Okay, so अगर statement defamatory है या नहीं है, ये कोर्ट देखेगा. Second very important thing court will see is whether it is published or not. It must be published, guys. Now, अगर हम सिंपल इंग्लिश में पब्लिश समझे तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होना, कोई मैगजीन में आना, टीवी में जर्नलिस्ट लोग उसे पब्लिश करते हैं, या कोई भी रेडियो पे या इंटरनेट पे उसे वायरल होना, दैट ऑल थिंग इज पब्लिश्ड. ये एक कॉमन मीनिंग है पब्लिश का, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है द वर्ड रिगार्डिंग द वर्ड पब्लिश्ड. ओके, सो बेसिकली पब्लिश इज नथिंग बट मेकिंग इट पब्लिक. What is it? Making it public, मतलब पब्लिक को पता चले तो उसे हम पब्लिश्ड बोलेंगे. इफ पब्लिश वर्ड को मैं फॉर डेफेमेशन आपको समझाऊं
it will also go to that extent that even if one person knows about the defamatory statement, it is deemed to be published. Okay, so putting it on media, TV, newspaper, magazine, ये सब तो publish है ही है, but even if one person knows about the defamatory statement, we can say it is published, because that one person can go and tell it to the world. I'll give you example, simple to understand this word published. जैसे मैं बता रही हूँ कि एक पर्सन को भी पता है तो इट इज डीम्ड टू बी पब्लिश्ड. If there are two friends in a particular room who's fighting with each other, and in that particular room सिर्फ मैं अकेली वहां पे हूँ और कोई वो रूम में नहीं है, ठीक है, और वो दो फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मैंने बोला इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, ओके. उसमें से वन ऑफ द फ्रेंड मेड अ वेरी बिग रिमार्क अबाउट द अदर फ्रेंड, अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो उसके कैरेक्टर को लेके एक उसने बड़ी बात कह दी और वो मैंने सुन लिया. ओके, सो द अदर फ्रेंड टोल्ड हिम कि मैं तुझे सू करूंगा अभी डेफेमेशन के लिए. तो बोलेगा किसने सुना है, सिर्फ मैम ही तो थी, ये शी वाज द ओनली वन हु आउट, एंड वी विल मेक श्योर कि वो ना किसी को कहे, हम उनके पास से ये कंफर्मेशन ले लेंगे, वो कहीं किसी को नहीं बोलेगी, तो यू नीड नॉट फाइल एनी सूट. बट नो, that he was my student, so that guy knew very well कि even if one person knows about it, it's deemed to be published. तो उधर मैंने सुना है, it's possible मैं जाके दुनिया में आगे बोलूँ, ना भी बोलूँ, but it's still considered as published. Okay, so the second requirement court will check is whether this defamatory statement is published or not. क्या ये पब्लिक में बाहर गया है, किसी ने भी इस defamatory statement के बारे में सुना है. तो बेसिकली डेफेमेशन का कंसेप्ट वो है कि द रेपुटेशन मस्ट बी लोवर्ड इन द आईज ऑफ पब्लिक. किसी का गुडविल और रेपुटेशन की पब्लिक की आंखों में कम हो गया तो उस तभी वो डेफेमेशन है. से अगर इन माय एग्जांपल व्हिच आई सेड, वो दो फ्रेंड ही वो रूम में लड़ रहे हैं एंड नोबडी एल्स इज देयर प्रेजेंट इन दैट रूम, एंड किसी और ने सुना ही नहीं है डेफेमेटरी स्टेटमेंट, भले कितनी भी बड़ी बड़ी बात उसने कह दी उसको, तो कोई मतलब ही नहीं, वो डेफेमेशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक की आंखों में उसकी रेपुटेशन कम होना ही डेफेमेशन है, ठीक है. तो सेकंड रिक्वायरमेंट कोर्ट विल चेक वेदर इट इज पब्लिश्ड और नॉट. एंड द थर्ड वन इज इट मस्ट बी कंस्ट्रूड टू बी डेफेमेटरी by right thinking people of society. Okay guys, so third thing court will see is whenever any judge is dealing with the case of defamation, court will see क्या right thinking people of society है, वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं इसके बारे में. ओके, इस स्टेटमेंट के बारे में व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग, दैट वुड बी सीन, दैट विल बी सीन. ओके, सो इट मस्ट बी कंस्ट्रूड टू बी डेफेमेटरी बाय राइट थिंकिंग पीपल ऑफ सोसाइटी. ओके, सो लोगों की नजरों में मतलब ऐसा हो सकता है, अगर इफ टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग, ओके, तो वन फ्रेंड विल थिंक कि क्योंकि सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है कि इसने तो मुझे बहुत बुरा भला कह दिया, इसने मेरा डिफेमेशन कर दिया है, लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी है. बट पॉसिबल है कि पब्लिक इसे बहुत नॉर्मली ले, इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली ना ले, एक नॉर्मली ले, लाइक लोगों की नजरों में वो चीज बड़ी बात नहीं है, ऐसा लोग परसीव कर सकते हैं उस चीज को, राइट.
तो it must be construed to be defamatory by right thinking people of society. तो any prudent person of the society, कोई भी right thinking people इस statement के बारे में कैसा सोचते हैं, whether they think it to be defamatory or not, ये भी judge देखेंगे, कोर्ट में देखा जाएगा. Okay, so all these three things will be seen by the judges, by the court while deciding any case of defamation. If all these three conditions are getting satisfied, then obviously the person will be punished for defamation. Okay, अगर ये तीनों satisfy होती है. Now, defamation are of two types, guys. Okay, defamation दो types के होते हैं. One is libel, मतलब इसके आपको particularly terms पता होने चाहिए. Libel and slander. Okay, तो ये लीगल टर्म्स है एंड दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड एज इन टॉट. ओके, तो लिबल क्या है? लिबल इज एनी डेफमेशन इन राइटिंग, मतलब न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कोई भी स्टेटमेंट विच इज डेफमेटरी इज गिवन इन राइटिंग, तो हम बोल सकते हैं उस पर्सन ने लिबल कमिट किया है. ओके, एंड व्हेन द डेफमेटरी स्टेटमेंट इज मेड बाय ओरल or spoken words, it's considered as slander. Okay, so whenever defamatory statement is in writing, we can say the person has committed libel, and whenever the defamatory statement is by oral or spoken words, जैसे कि टीवी जर्नलिस्ट या कहीं किसी ने ओरली रेडियो वगैरह पे बोल दिया, पब्लिश कर दिया, तो ओरल और स्पोकन वर्ड से है तो उसे हम स्लैंडर बोलेंगे. Alright, these are two types of defamation. ये just आपको इसके meaning पता होना चाहिए. Now, going ahead with the topic of defamation, we have certain defenses available, especially against defamation. We have some defenses, especially against defamation. Means generally taught में a lot of general defenses are there, by pleading which person can be free from liability. The defendant can be free from liability. But defamation purpose से खुद के अलग defenses हैं. मतलब जब भी किसी को defamation के charges किसी पे लगाए गए हैं, उसके लिए उसके अलग defenses available होंगे. Let's understand those defenses. Okay, first is absolute truth. So whenever a defendant can prove it in the court that whatever he is saying is absolutely true, भले वो कितना भी defamatory statement हो, if he can prove it that whatever he said is absolutely true statement, then he can be completely free from liability. Okay, so टीवी जर्नलिस्ट वगैरह काफ़ी टाइम कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं, बट इफ दे हैव सम बेसिस ऑफ सेइंग इट एंड इफ दे कैन प्रूव इट कि ये जो मैंने बताया इसके लिए हमारे पास प्रूफ्स है, एविडेंसेस है, एंड मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, तो हाउएवर डेफमेटरी इट मे बी, वो डेफिनेटली खुलेआम इसे बोल सकता है, भले किसी का रेपुटेशन खराब हो, बट क्योंकि वो जो बोल रहा है वो सच है, तो वो बोलने में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही इंडिया में. करेक्ट. Second one, fair or bona fide comment. So, if any person is making some defamatory statement, which is like considered as to be defamatory statement, but as a fair and bona fide comment in good faith, सिर्फ fair and bona fide way में मतलब इन गुड फेथ अच्छे इंटेंशन से सिर्फ वो अथॉरिटी अपना कमेंट दे रहा है. ठीक है, जैसे कि हम एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, उनके वो एडिटर के ओपिनियन होते हैं, कमेंट्स होती है. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आप लोगों को, तो इफ एनी फिल्म क्रिटिक का वो वर्क कर रहे हैं, दे आर फेमस एज फिल्म क्रिटिक्स, एंड वो कोई फिल्म की रेटिंग्स देते हैं, जैसे कि
कि दिस मूवी इज नॉट अ गुड मूवी, आई जस्ट गिव 1 स्टार टू दिस मूवी एंड डोंट गो एंड वॉच दिस मूवी, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कोई कमेंट दिया है किसी फिल्म क्रिटिक ने, तो वो उनका जॉब है, दे आर द अथॉरिटी टू गिव दैट कमेंट, ओके, सो इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द अथॉरिटी हु इज सपोज टू गिव दैट कमेंट, ओके। सो अगर फिल्म क्रिटिक ने ये फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट दिया है पब्लिक के लिए, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, नो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कैन सू देम फॉर दैट, ओके। बट या कोई फिल्म एक्टर दूसरे एक्टर के बारे में बोल दे कि ये तो एकदम वाहियात मूवी थी, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम मूवी है, बिल्कुल जाके मत देखना, आई वंडर कि ये पागल लोग हैं कि ऐसी मूवी बनाई, तो दे आर नॉट द वंस हु आर सपोज टू मेक दोज कमेंट्स ऐसे, तो डेफेमेशन के लिए सू किया जा सकता है। बट अगर किसी फिल्म क्रिटिक को किया है तो ही कैन से इट्स एज अ फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट एंड he can plead that as a defense and can be free from liability, मतलब defamation के punishment से वो बच सकते हैं, ठीक है। And the third one, the last one is privilege. Some person in India have absolute privilege to say anything and they can be free from liability. Can you guys guess who that is? No guys, it's not president. No, आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर्स प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिविलेज इज गिवन टू पार्लियामेंटेरियंस, मतलब मैं बोलूंगी MPs and MLAs. So whenever house is in session, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज जब भी वो सेशंस में है, मतलब उसका उनके सेशंस चल रहे हैं, एंड व्हेनेवर द प्रोसीडिंग्स इन द सेशन इज गोइंग ऑन, एट दैट टाइम हम देखते हैं काफी बार टीवी में ये दिखाया जाता है कि अमित शाह ने इसके लिए ऐसा बोला, राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए बोला, तो इनसाइड द हाउस व्हेनेवर द सेशंस आर गोइंग ऑन, द MPs और MLAs कैन मेक एनी स्टेटमेंट, however defamatory it may be, they cannot be sued for it. वो लोग को complete privilege है, हाउस की सेशंस चलते हैं तभी वो लोग कुछ भी बोले, they will not be liable, okay? So these are 3 defenses against defamation. So whenever defamation का केस है, आप किसी के अगेंस्ट फाइल हुआ है, and if they can prove anyone out of this, they can be free from liability. So that's all about defamation, guys. मैंने आज सारी की सारी कंसेप्ट अबाउट द डेफेमेशन मैंने कवर कर ली है. That's all you need to know about defamation according to me. So I hope you guys found this session a helpful one, found this video a helpful one. If you have really liked the video, please like it, share it with your friends so that उनको भी फायदा हो जाए, and please comment and let me know how did you find it. Bye bye guys, thank you so much.